आफ्टर दैट, हाउ मैनी टाइम्स कैन वी अप्लाई फॉर एन इंटरव्यू? तो एक पर्टिकुलर एयरलाइन में हर एक एयरलाइन का रूल अलग अलग है, बट स्टिल आई वुड से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं. एंड वंस यू हैव अटेम्प्टेड फॉर एन इंटरव्यू, और अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए, सेकंड राउंड में सिलेक्ट हो गए और थर्ड राउंड में जाके आप डिस्क्वालीफाई हो गए, इन दैट केस द एयरलाइन वुड ब्लॉक योर रेज्यूमे और योर प्रोफाइल फॉर नेक्स्ट 3 months. जैसे कि इंडिगो में 3 months के लिए ब्लॉक कर देते हैं आपका प्रोफाइल, तो नेक्स्ट 3 months तक यू कैन नॉट गो फॉर दैट इंटरव्यू. और सिमिलरली विस्तारा में 6 months का टाइम पीरियड है, अगले 6 महीने के लिए वो उस कैंडिडेट की प्रोफाइल ब्लॉक कर देते हैं, राइट? तो आप अननेसेसरी अपने अटैम्प्ट्स वेस्ट मत करो. येस, आप ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन अटेम्प्ट एन नंबर ऑफ टाइम्स, आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, बट फालतू में आप एक बार जाके अगले 3 महीने के लिए खुद को ब्लॉक कर दो. इससे बेटर है कि आप 1 महीना और लो और नेक्स्ट मंथ जाके आप ट्राई करो, राइट? सो इट्स जस्ट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी रियली वेरी गुड एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. ओनली देन यू शुड गो फॉर दैट इंटरव्यू. आफ्टर दैट, what kind of formals do we have to wear for an interview? So I will just share some pictures and then you might get that idea कि आपको कैसे formals पहनने चाहिए. From your hair to your toe, how you should dress up and groom yourself. After that, does any airline charge for interview? No, I have already told all these things कि interview के लिए कोई भी airline कुछ भी charge नहीं करते हैं, तो अगर कोई भी आपसे पैसे मांगता है तो please आप pay मत करिए. How to make a perfect resume for a cabin crew interview? So the basic formula is just keep it simple, short and proofread, which means printed format में होना चाहिए and no grammatical or spelling errors should be there. So you can make your CV effective and impressive in just 5 simple steps, and that is, first of all, mention your personal details, wherein you mention your name, home address, personal email address and contact number. Then your professional details, wherein you mention your work experience in reverse chronological order. Then you need to mention your education and qualification details. Only highest level of education needs to be mentioned over here. Then the step 4 is mention your skills, and please remember a short targeted skills will be more effective than the one that's long and overwhelming, right? And please remember, skills like your hobbies needs not to be mentioned over here because it's kind of personal information and you just need to stick to your professional information over here. And just in case if you're asked in the interview, then you can tell them, but you don't need to mention it over here in your CV. In the end, just mention your references, and please make sure that all the information that you provide in your resume is true. After that, what kind of picture should we mail to the airlines for, like अगर passport picture है तो कैसी picture mail करनी चाहिए और full size picture किस तरह की होनी चाहिए. तो I will share the picture with all of you so that you get an idea for that कि आपको किस तरह की picture mail करनी होती है. After that, how to improve your communication skills. So I have already made a video for this also, but बहुत ही short में I will explain some important points for this also here, and that is, first of all, you need to use simple and straightforward language whenever you want to communicate with someone. बहुत ज़्यादा उसको complicate करने की ज़रूरत नहीं है. आप simple words, simple language भी use करेंगे तो भी सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा और वो और better sound करेगा, right? And that would be easier for you also. Then deliver your words clearly. You should be clear on your thoughts कि आप क्या बोलना चाहते हो और वही चीज़ सामने वाले को समझ में आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बोला और सामने वाले को कुछ और समझ में आया, right? And then make one point at a time. अगर आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो एक बार में एक ही चीज़ बोलो, उसको mix and match करने की ज़रूरत नहीं है. Then make sure your message is brief and to the point. That means short and crisp. अगर आप कोई भी बात बोल रहे हो तो वो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा हर चीज़ें एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. देन द फिफ्थ वे इज़ मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉकिंग टू समवन. आप जिससे भी कभी भी बात कर रहे हैं तो आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज कम्युनिकेशन तो ब्रेक होता ही है, प्लस यू टेंड टू लूज़ योर कॉन्फिडेंस. तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए. उसके अलावा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इज़ अ मस्ट. Then avoid saying offensive things to someone, क्योंकि आप वो चीज़ के बारे में क्या फील करते हो that might be different, but the other person might feel different for that particular things. You need to be confident while talking, and you need to just keep practicing and talking to people to improve your communication skills and your confidence while talking in English and Hindi. So what is the next question? Next question is tips for interview. So I have already made a video for this also, and you can check in the description below, but
I will just tell you in short the topmost 10 tips for your interview, and that is, first of all, research about that particular organization, about that particular job, जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज आधा अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप जो जॉब करने जा रहे हो वो कैसा है, प्लस जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया है वो ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह थोड़ा ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यू नीड टू प्रैक्टिस, आप बार बार प्रैक्टिस करो कि आप से सपोज़ किसी ने कुछ पूछा है तो हाउ वुड यू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। देन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ योर knowledge about that particular airline and your job profile, and also your appearance and everything that you would represent in front of your interviewer. Other than that, you need to dress professionally and you need to be very much prompt. अगर आप थोड़ा भी डिले करेंगे आंसर देने में तो that might not sound good, and you need to be speaking clearly, right? And you need to be very much honest. Honest means आप ये नहीं कि हर कोई चीज़ उनके सामने बोल दो, बट येस इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन आपको ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। बी प्रोफेशनल एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू नीड टू बी रियली वेरी असर्टिव। आपको असर्टिव भी होना ज़रूरी है, आप हर टाइम पैसिव होकर काम नहीं कर सकते हैं। सो देर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू बी असर्टिव ऑल्सो, एंड एट लास्ट यू नीड टू हैव अ प्लीजिंग एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी एंड यू हैव टू always keep a smile on your face. That's it. So the next question is, when do you get promotion when you are working as a cabin attendant, and when you get an increment for your salary? So increment की अगर बात करें तो that is after 3 years of your joining. So when you become a senior cabin attendant, and अगर आप उस process के through नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास एक और option होता है, and that is the process goes like this. First of all, you join as a grade trainee cabin attendant, and after that, when you are released from iFly or any other training institute of the airline, then you get your wings to fly, and then you first of all fly for your observation flight. आपकी जो 2 flights होती हैं वो observation flight होती है, and after that you start flying solo. और जब आप सोलो फ्लाई करना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट फ्लाइंग एज R1. देन आफ्टर सम टाइम, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, लाइक अगर छोटा बेस लोकेशन है तो वहाँ पे आप माइट बी यू वुड स्टार्ट फ्लाइंग एज R2 आफ्टर 6 months. बट अगर कोई बड़ा बेस लोकेशन है लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, तो यू माइट गेट टू फ्लाई एज एन R2 मे बी आफ्टर अ मंथ ऑफ योर फ्लाइंग, राइट? तो R1 के बाद R2 एंड देन यू स्टार्ट फ्लाइंग एज L2. तो L2 इज़ द सेकेंड सीनियर ऑन बोर्ड. तो जो सेकेंड सीनियर क्रू होता है उसको हम L2 एलोकेशन देते हैं, एंड आफ्टर दैट 3 years ऑफ फ्लाइंग के बाद में जो हम नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो यू विल बिकम अ सीनियर कैबिन अटेंडेंट. यू विल गेट योर व्हाट डू वी से इंक्रीमेंट इन योर सैलरी. बट बिफोर दैट, इफ़ यू वांट टू जॉइन एज इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर सीनियर कैबिन अटेंडेंट, IJP जो आते रहते हैं आपके इसमें, तो अगर इन जॉब पोस्टिंग में अगर आपको ऐसा लगता है कि लीड या सीनियर कैबिन अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट. बट व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, you need to have at least 1 year of flying experience in past 2 years. और उसके अलावा आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होना ज़रूरी है एंड मैक्सिमम एज इज़ 35 ईयर्स. 35 ईयर्स के बाद में आप लीड कैबिन अटेंडेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. एंड नो वार्निंग लेटर्स शुड बी इशूड टू यू. अगर आपको कोई भी वार्निंग लेटर या कोई पैसेंजर कंप्लेन से रिलेटेड कोई इशू है जो आपके नाम पर रजिस्टर हुआ है, so that might be an hindrance to your this process, right? And after that, you must be very, very assertive but polite. You must be willing to work in a multicultural environment and multicultural team, क्योंकि आपके साथ में कैसा सेट ऑफ क्रू, आपको हर दिन न्यू सेट ऑफ क्रू मिलता है, तो वो कैसे कौन लोग आपके साथ में फ्लाई करने वाले हैं, यू नेवर नो. बट यू नीड टू बी रेडी टू टैकल ऑल दोज सिचुएशंस एंड ऑल दोज पीपल. एंड एक्सेलेंट पर्सनैलिटी, दैट इज़ अ मस्ट. लगना चाहिए कि हाँ ये सीनियर क्रू है ऑन बोर्ड एंड विथ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि बाय चांस किसी का भी दिमाग, क्रू कोई भी है क्रू जो बाकी 3 क्रू है ऑन बोर्ड, अगर किसी का भी दिमाग काम नहीं भी कर रहा है तो भी उस सिचुएशन में आपको अपना दिमाग लगाकर वो सिचुएशन किसी भी तरह सॉर्ट आउट करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है. सो एब्सोल्युटली गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट. एंड येस, यू हैव टू हैंडल सो मेनी सिचुएशंस. So good leadership skills is also required. So these are few eligibility criteria to become a lead cabin attendant or a senior cabin attendant before 3 years, अगर आप apply करते हैं IJP के through जाकर.
After that, the next question is, how long is the training period for cabin attendant and for ground staff? तो cabin crew के लिए तो I have already mentioned 90 days of training period is there, and for ground staff it is between 15 to 20 days. And the next question is, how much is the training fees for cabin crew and for ground staff? So cabin crew it is approx 50,000 depending on airline to airline, and for ground staff there is no fees for training, क्योंकि training period भी बहुत छोटा होता है तो कोई ऐसा training fees नहीं है उसके लिए. The next question is, do airline provide accommodation facilities to cabin crew members or to ground staff or to pilots? तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. दे ओनली प्रोवाइड यू अकोमोडेशन व्हेन यू ट्रैवल आउट स्टेशन फॉर लेओवर्स, फ्लाइट ड्यूटीज़ या फ्लाइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. अदर दैन दैट व्हेन यू हैव जस्ट जॉइंड, आपने जस्ट ज्वाइन किया है और आप ट्रेनिंग के लिए गए हैं, तो आपको इनिशियली 15 डेज़ के लिए अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से मिलेगा. आफ्टर दैट यू हैव टू लुक फॉर योर ओन अकोमोडेशन, और कोई उसका पेमेंट वगैरह कहीं से नहीं मिलता है आपको. येस, देयर आर फ्यू एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस में है कहीं कहीं जहाँ पे दे प्रोवाइड अकोमोडेशन, या वो आपको अकोमोडेशन के लिए अलाउंस दे देते हैं, बट नॉट इन डोमेस्टिक एयरलाइंस. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ ग्राउंड स्टाफ? तो आई विल बी टेलिंग यू दिस इन ब्रीफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंडलिंग द पैसेंजर्स ऑन ग्राउंड, चेक इन से लेके उनका बोर्डिंग तक का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें लुक आफ्टर करना वो ग्राउंड स्टाफ का जॉब होता है. लाइक आप जब चेक इन करते हैं तो चेक इन के बाद से, मतलब आप जैसे ही एंटर कर रहे हैं एयरपोर्ट में, वहाँ से लेके बोर्डिंग तक आपका चेक इन, आपका बैगेज और सिक्योरिटी चेक, सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ ग्राउंड स्टाफ के इसमें आता है. उसके अलावा हैंडलिंग पैसेंजर क्वेरीज़, जितने भी क्वेरीज़ हैं टेलीफोनिकल या वहाँ पर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो वो सारी चीज़ें ग्राउंड स्टाफ हैंडल करते हैं. एंड देन कैबिन क्लीनिंग. सो कैबिन क्लीनिंग मीन्स, अगर कोई फ़्लाइट लैंड हुई है, सपोज़ हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में जो फ़्लाइट लैंड हुई है, जितनी भी फ़्लाइट लैंड हो रही है तो वहाँ पे जो रैंप मैनेजर होते हैं और वो सब होते हैं, तो वो जो रैंप पे जो भी उस टाइम पे असाइंड होगा, जिसकी भी ड्यूटी होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कैबिन क्लीन होना चाहिए, लैबोरेटरीज़ क्लीन होनी चाहिए, है ना, कॉकपिट क्लीन होना चाहिए. तो वो क्लीनर्स को वहाँ पर टाइम पर लेकर जाएँ और वो क्लीनिंग करवाना कैबिन का, वो सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड दैट टू इन टाइम, मतलब ऑन टाइम सारा काम हो जाना चाहिए कंप्लीट, सो दैट डोर क्लोजर में लेट ना हो. एंड देन केटरिंग. अब केटरिंग के लिए सपोज़ वैसे तो जो केटरिंग डिपार्टमेंट है उनका काम है. केटरिंग डिपार्टमेंट में जो ग्राउंड स्टाफ होता है उनको हम कांटेक्ट करते हैं. बाय चांस कोई डिफिशिएंसी है, कोई सामान हमारे पास नहीं है हमारे कार्ट में, सो वी कांटेक्ट देम प्रायर, लाइक लैंडिंग के पहले हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि वी रिक्वायर ऑल दीज थिंग्स, और वो सारी चीज़ें उनको बता देते हैं. तो वो सब अरेंज करके रखते हैं और फिर वो अपलिफ्ट हो जाता है हमारे कार्ट में. और टिकट सेल्स, दे लुक आफ्टर ऑफ ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो. देन मॉनिटरिंग एंड planning and controlling of airline flight operations. So these are the basic tasks that are being performed by the ground staff of an airline. So it is like they work in a shift and have an important role इन फ्लाइट ऑपरेशंस. तो वो शिफ्ट में काम करते हैं. सपोज़ किसी का डे शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, वो शिफ्ट में उन सबको ड्यूटीज़ असाइंड होती है और उस शिफ्ट में आपको आना होता है. आपका 8 आवर्स का शिफ्ट होता है, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म योर ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो आई गेस आई हैव tried to answer almost all the questions, all the possible questions जो आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, and that you all have been asking me from this much of time. So I have tried to answer all those questions in just one video, but because it is a very long video, I had to post like it in few parts, 3 to 4 parts में मुझे करना पड़ा. That's all for today. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much for all your support, and please do consider liking my videos if you find that these are useful, and please do share it with your relatives and friends, and do comment in the comment section below if you want me to make more videos, and whatever you want me to tell you in my next videos, please do comment. And that's all for today. Thank you. Bye bye.